السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد، میں ہوں سلما کوثر۔ ناظرین کھیل کی خبریں لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا سمیع اقبال، اور موسم کی تازہ ترین اپڈیٹ لیے میں ہوں رمیسہ قریشی۔ نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا دورہ متحدہ عرب امارات، یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات، علاقائی امن اور خوشحالی کے مشترکہ اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق، باہمی دلچسپی کی دو طرفہ علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال، اہم شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ، خطے میں امن، مذاکرات اور استحکام کے فروغ میں متحدہ عرب امارات کے مثبت کردار کی تعریف، پاکستان بھارت کشیدگی کو کم کرنے میں تعمیری کردار ادا کرنے پر متحدہ عرب امارات کی قیادت کا شکریہ ادا کیا، وزیر اعظم کا متحدہ عرب امارات کے صدر کو جلد پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت کا اعادہ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا دورہ متحدہ عرب امارات، یو اے ای کے صدر کے بھائی اور مشیر قومی سلامتی شیخ تہنون بن زائد نے ایئرپورٹ پر خیر مقدم کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزراء عطاء اللہ تارڑ، محسن نقوی اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی ہمراہ۔ علم پر مبنی معیشت کی جانب سفر تیز، حکومت نوجوانوں کو بااختیار بنانے اور ڈیجیٹل تبدیلی کے لیے پرعزم، وزیر اعظم کی لندن ٹیک ویک میں پاکستان کی مؤثر نمائندگی پر سٹیک ہولڈرز کو مبارکباد، ٹیکنالوجی، جدت اور نوجوانوں کی صلاحیتوں کو بروئے کار لا رہے ہیں، لندن ٹیک ویک میں موجودگی بڑھتے ڈیجیٹل فٹ پرنٹ اور عالمی اہداف کی عکاس ہے، وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ صدر آصف علی زرداری سے آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے ارکان کی ملاقات، آزاد جموں و کشمیر کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال، مسائل اور خطے میں سہولیات کی فراہمی پر بھی گفتگو، صدر مملکت کا ترقی اور خوشحالی اور عوام کی فلاح و بہبود پر خصوصی توجہ دینے پر زور۔ پاکستان امن کا خواہاں، کشمیر سمیت تمام مسائل مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں، بھارت کو سنتاس معاہدہ معطلی جیسے ماورائے قانون اقدامات سے روکا جائے، بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پاکستانی وفد کی برسلز میں اہم ملاقاتیں، بھارت کے جارحانہ رویے اور خطے میں امن و سلامتی کو درپیش خطرات سے آگاہ کیا، پاکستان اور یورپی یونین کے مابین تعاون کے فروغ پر بھی گفتگو۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، پاکستان اور بھارت کے مذاکرات ہونے چاہیے، پاکستان کا موقف تگڑا اور سچ پر مبنی ہے، دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے اقدامات کو امریکہ بھی تسلیم کر رہا ہے، بھارت سنتاس معاہدے کو یک طرفہ معطل یا ختم نہیں کر سکتا، یورپی یونین کے سامنے بھارتی اشتعال انگیز اقدامات کے تناظر میں اپنا مقدمہ پیش کیا، بھارتی اقدامات عالمی قوانین کے منافی، یورپی یونین اپنا مثبت کردار ادا کرے، برسلز میں سفارتی وفد کی میڈیا سے گفتگو۔ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیا، تعمیراتی شعبے کو فروغ دینے کے لیے بجٹ میں متعدد اقدامات اٹھائے، کارپوریٹ سیکٹر کے لیے بھی ٹیکس میں کمی، متوسط طبقے کو گھروں کی تعمیر کے لیے سستے قرض کی فراہمی، بی آئی ایس پی میں 21% اضافہ کر کے 716 ارب روپے مختص، 1 کروڑ سے زیادہ گھرانے مستفید ہوں گے، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی خزانہ کے اجلاس میں گفتگو۔ وزیر اعظم نے سیاسی طور پر غیر مقبول اور معاشی طور پر ناگزیر اقدامات کیے، تنقید کرنے والوں کو گریبان میں جھانکنا چاہیے، تباہ کن سیلاب نے معیشت کو اربوں ڈالرز کا نقصان پہنچایا، ہم نے معاشی مشکلات کے باوجود ترقیاتی منصوبوں کو جاری رکھا، پی ٹی آئی نے معاشی حوالے سے بارودی سرنگیں بچھائی، مہنگائی میں کمی، معاشی خسارے کو قابو کیا، عالمی مالیاتی ادارے پاکستان کی معاشی بہتری کے گواہ ہیں، وفاقی وزیر احسن اقبال۔ صوبہ سندھ کا آئندہ مالی سال کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا، وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ سندھ اسمبلی میں بجٹ پیش کریں گے۔
खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का बजट इजलास कल दोपहर 3 बजे शेड्यूल। सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम बजट पेश करेंगे। कौमी असेंबली में आइंदा माली साल के बजट पर बहस का कल से आगाज होगा। हर शहरी का शनाख्ती कार्ड नंबर MR नंबर होगा। डॉक्टर्स फौरी मरीज के माजी तक तिब्बी रिकॉर्ड तक रसाई हासिल कर सकेंगे। वफाकी वजीर IT शजा फातिमा और वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का वन पेशेंट वन ID मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा। 31 दिसंबर तक मंसूबे की तकमील का हदफ मुकर्रर। मंसूबा वजीर आज़म शहबाज शरीफ के डिजिटल नेशन पाकिस्तान विजन की अमली ताबीर है। वफाकी वजीर शजा फातिमा। भारतीय रियासत गुजरात में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह। 241 अफराद हलाक, एक मुसाफिर मौजज़ाना तौर पर बच गया। तैयारे में 230 मुसाफिर और अमले के 12 अरकान सवार थे। भारतीय मीडिया। अहमदाबाद से लंदन जाने वाला एयर इंडिया का तैयारा उड़ान भरते ही रिहायशी इलाके में जा गिरा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस। मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार। इसराइली फोर्सेस की एक बार फिर इमदादी मराकज पर बमबारी। 103 फलस्तीनी शहीद, 427 जख्मी। जनीन पनाह गुज़ीन कैंप में काबिज फोर्सेस के बुलडोजर्स ने कई फलस्तीनियों के घर मस्मार कर दिए। शौदा की मजमूई तादाद 55,207 तक पहुंच गई। जान बचाने वाली अद्वियात और सामान की शदीद किल्लत। गजा का निज़ाम सेहत तबाही के दहाने पर, तमाम अस्पताल बंद। ईरान इसराइल कशीदगी में इजाफा, खित्ते में हाई अलर्ट। बगदाद में अमरीकी सफारत खाने के गैर जरूरी अमले को इनखला का हुक्म। बहरीन और कुवैत में तैनात अमरीकी फौजियों के अहले खाना को भी वापस बुला लिया। कुवैत, कतर, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात में भी अमरीकी अड्डों की सिक्योरिटी मजीद सख्त। इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है, अमरीकी मीडिया। कश्मीरियों की जिदोजहद आज़ादी को दबाने के लिए भारत के ओछे हथकंडे। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीनियर हुर्रियत रहनुमा शबीर अहमद शाह की झूठे मुकदमे में जमानत मुस्तरद कर दी। शबीर अहमद शाह नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद हैं। भारत हक खुद इरादियत की मुनसिफाना जदोजहद को दबा नहीं सकता। आज़ादी के मुतालबे से कभी दस्तबरदार नहीं होंगे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। सदर ट्रंप की मसला कश्मीर हल कराने की कोशिशों पर भारतीय अवाम सीख पा। इंतहा पसंद हिंदुओं का अमरीका के खिलाफ शदीद एहतजाज। अमरीकी झंडे की बेहुरमती, पैरों तले रौंद डाला। सदर ट्रंप की जानिब से जंगबंदी कराने का दावा भारतीयों को हजम नहीं हो रहा। एहतजाज का मकसद अफवाज पाकिस्तान के हाथों हजीमत छुपाना है। भारत की दोगली पॉलिसी, गोदी मीडिया की अमरीका पर तनकीद। मारूफ भारतीय दिफाई सहाफी और एंकर शिव अरोरा ने एक्स पर अमरीका मुखालिफ ट्वीट कर दिया। भारतीय हुकूमत की खारजा पॉलिसी खुद उसके मीडिया के लिए नाकाबिले बर्दाश्त। भारत की खारजा पॉलिसी बयानात, जज्बात और ट्वीट्स के रहमो करम पर। मोदी की कठपुतली हसीना वाज खित्ते में बदअमनी का सबब। इश्तियाल अंगेज रवैया खित्ते के अमन के लिए खतरा। मोदी और हसीना का गठजोड़ बेनकाब। मोदी का गैर संजीदा रवैया जनूबी एशिया के लिए खतरे की घंटी। मोदी का हसीना वाजिद को नफरत अंगेज तकारीर से न रोकना तशवीशनाक। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस का इंटरव्यू। भारत की जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल के तजर्बे की तैयारी। जदीद तरीन हाइपरसोनिक मिसाइल की आजमाइश की तैयारियां आखिरी मराहिल में। मिसाइल तकरीबन 11,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर करता है। पाकिस्तान के खिलाफ मुमकिन जारियत की नीयत से भारत तेजी से तैयारी कर रहा है। जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल इस बात का वाज़ेह इशारा है। जी न्यूज की रिपोर्ट। मोदी का जंगी जुनून और भारतीय मईशत की सुस्त रवि। भारत के लिए माशी मैदान से भी बुरी खबरें। आलमी बैंक ने अगले माली साल के लिए भारतीय इक्तिसादी तरक्की की रफ्तार 6.7% मुतवक्के से कम करके 6.3% कर दी। कमी बरामदात और सरमायाकारी की सुस्त रफ्तार की पेश नजर की गई। गिरती आलमी डिमांड और तिजारती रुकावटों की बदौलत भारतीय मईशत सुस्त रवि का शिकार।
मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर। महकमे मौसमियात ने मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की नवीद सुना दी। मगरबी हवाओं का सिलसिला बालाई इलाकों में दाखिल होने का इम्कान। कल से 16 जून तक तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, बालाई और वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और बालाई सिंध में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। लॉर्ड्स में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल दूसरा रोज भी बॉलर्स के नाम रहा। जनूबी अफ्रीका की टीम पहली इनिंग्स में 138 रन पर थे। पैट कमिंस की 6 विकेट्स। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 212 रन बनाए। मुकाबला देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स एशिया पर बराह रास्त। और लंदन में क्वींस क्लब टेनिस चैंपियनशिप क्वार्टर फाइनल लाइनअप मुकम्मल। अमेरिका की एमा नवारो ने लास्ट 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया। अमेरिका ही की अमांडा अनेस्मोवा की भी क्वार्टर फाइनल में रसाई। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। आजम का नौजवानों के लिए स्पेशल इनिशिएटिव पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन और नेफ्टेक के बाहमी इश्तराक से इंडस्ट्री के हमरा हुनर से रोजगार का सफर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और SIFC की मुशावरत से नेफ्टेक कर रहा है। इंडस्ट्री के माहिर असातिज़ा की जेर निगरानी कौमी बैन अल-अक़वामी सतह पर हाई डिमांड स्किल्स, टेक्सटाइल मर्चेंडाइजिंग, इंडस्ट्रियल स्टिचिंग मशीन ऑपरेटर, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन, टेक्सटाइल डाइंग एंड प्रिंटिंग, निटिंग मशीन ऑपरेटर के शोबों में 3 से 6 माह की मुफ्त फनी तरबियत का आगाज। दाखिले की आखिरी तारीख 20 जून। क्लासेस का आगाज 25 जून 2025। अहलियत की शराइत और मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें। नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन, हुकूमत पाकिस्तान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद वुसअत देने के आज़म का इयादा किया है। अबूज़हबी में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात हुई है। दोनों मुल्कों की क़यादत ने दो तरफा मुख्तलिफ पहलुओं, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान बाहमी एतमाद, मुश्तरका अक़दार, करीबी ताउन और गहरे भाईचारे पर मबनी ताल्लुकात को उजागर किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम करने में तामीरी किरदार अदा करने पर मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में UAE के मुस्बत किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात को मुस्बत अंदाज और तमाम सतह पर जारी पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार किया। वज़ीर आज़म और सदर UAE ने करीबी रवाबित बरकरार रखने और इलाकाई अमन और खुशहाली के लिए मुश्तरका अहदाफ के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तिफ़ाक़ किया। वज़ीर आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत का इयादा किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, विफाकी वज़रा सैयद मोहसिन रज़ा नकवी, अताउल्लाह तारड़ और मुआविन खुसूसी सैयद तारिक फ़ातमी भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात के एक रोज़ा दौरे पर अबूज़हबी पहुँचे तो अल-बतीन एयरपोर्ट पर UAE के सदर के भाई और मुशीर कौमी सलामती शेख तहनून बिन जायद अल नहयान ने वज़ीर आज़म और उनके वफ़द को खुशामदीद कहा। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल अली अहमद अश-शम्सी, पाकिस्तानी सफ़ीर फैसल नियाज़ तिरमिज़ी और आला हुक्काम भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत टेक्नोलॉजी की तरक्की, जिद्दत और नौजवानों की सलाहियतों को बरूएकार लाने के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। लंदन टेक वीक में पाकिस्तान की मौसर नुमाइंदगी पर स्टेक होल्डर्स को मुबारकबाद देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि लंदन टेक वीक जैसे अहम प्लेटफॉर्म में
पाकिस्तान की नुमाइंदगी हमारे बढ़ते हुए डिजिटल फुटप्रिंट्स और आलमी अहदाफ की अक्कास है। पाकिस्तान की भरपूर शिरकत से तरक्की करते हुए मुल्क की हैसियत हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का विजन भरपूर अंदाज में पेश करने पर तमाम स्टेक होल्डर्स की काविशें लायक तहसीन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इल्म पर मबनी मईशत की जानिब सफ़र तेज कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी के शोबे में पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और डिजिटल तब्दीली के लिए पुरआज़िम है। सदर आसिफ अली जरदारी ने जम्मू कश्मीर की तरक्की, खुशहाली और खित्ते के आवाम की फलाह बहबूद पर खुसूसी तवज्जो देने पर जोर दिया है। सदर आसिफ अली जरदारी से आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के अरकान के वफ्द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वफ्द ने सदर ममलिकत को आज़ाद कश्मीर के मसाइल और तरक्याती ज़रूरियात के हवाले से आगाह किया। मुलाकात में आज़ाद जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत हाल और सहूलतों की फ्राहमी के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द का दौरा यूरोप। वफ़द ने यूरोपीय क़यादत को भारत के गैर कानूनी इक़दामात से आगाह किया और मसला कश्मीर के हल पर जोर दिया। तफसील जानते हैं हुसैन रजा से। पार्लिमानी वफ्द के सरबरा और साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तजारत के फ़रोग के लिए खिते में अमन का क़याम नागुज़ीर है। इनका कहना था कि जंग किसी मसले का हल नहीं, पाकिस्तान का पैगाम अमन है। हम समझते हैं कि जंग किसी मसला का हल नहीं होता और भारत के साथ इंगेज हो के, चाहे वो दहशतगर्दी हो, चाहे वो कश्मीर का मसला हो और ऑफकोर्स हमारा पानी का जो अहम मसला हो, उनका हल निकाला जाए। इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पार्लिमानी वफ्द ने ब्रसल्स में यूरोपीय पार्लियामेंट की बैनुल-अक़वामी तजारती कमेटी के सरबरा बर्न लांजे से मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा तजारत समेत इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वफ्द ने भारत की हालिया जारहाना पॉलिसियों बिलखसूस सिंतास माहदे को मुअत्तल करने के यकतरफा इक़दाम और शहरी आबादी को निशाना बनाने जैसे इक़दामात से आगाह किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि यूरोपीय यूनियन कानून की हुक्मरानी का अलमबरदार है। हम उम्मीद करते हैं कि भारत को बैनुल-अक़वामी मुआहदों की खिलाफ वर्जी से गुरेज के लिए कहा जाएगा। ब्रसल्स में पाकिस्तानी वफ्द ने बेल्जियम फॉरेन अफेयर कमेटी के वाइस चेयर कैटेलियन डिपोर्टर, चेयर ऑफ पाकिस्तान बेल्जियम पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप, फ्रैंकियम बेलेजेंड, सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान के दीगर अरकान से भी मुलाकात की। इन मुलाकातों में जनूबी एशिया में अमन और सलामती की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। हुसैन रजा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने ब्रसल्स में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि तारीख में पहली बार दुनिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ खड़ी हुई है, जो कि एक तारीखी सिफारती फतह है। उन्होंने कहा कि इस कामयाबी का सेहरा वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के सर है, जिनकी क़यादत में पाकिस्तान ने आलमी सतह पर अपनी पोजीशन मजबूत की है। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि आज पाकिस्तान की सिफारती फ़ौक़ियत की बड़ी वजह हमारी हालिया अस्करी फतह है। 3 से 4 दिन की मुख्तसर जंग में भारत का बर्तरी का जोन मुकम्मल तौर पर खाक में मिल गया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि आइंदा माली साल के बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया गया है, जबकि कॉरपोरेट सेक्टर के लिए भी टैक्सेस में कमी की गई है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना और महसूलात के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तामीराती शोबे को फ़रोग देने के लिए बजट में मुतादिद इक़दामात उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुतवसत तबके को घरों की तामीर के लिए सस्ते कर्जे देंगे। वफाकी वज़ीर ने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 21% इजाफा करके 716 अरब रुपए मुख्तस किए गए, जिससे 1 करोड़ से ज़ायद घराने मुस्तफ़ीद होंगे। नाज़रीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज़ान इशा का वक्त हुआ चाहता है। आइए सुनने की सारत हासिल करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह,
على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने माशी तौर पर नागुज़ीर इक़दाम किए जिससे मुल्क की मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। रिपोर्ट कर रहे हैं फहद जावेद। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने हालिया बजट में तरक्याती मनसूबों के हवाले से इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आलमी इदारों ने पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी की गवाही दी है। हम ठोस और मजबूत बुनियादों पर तरक्की के अमल को आगे बढ़ाना चाहते हैं। टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए FBR में रिफॉर्म्स का सिलसिला शुरू किया और आपने देखा कि गुज़श्ता साल तकरीबन 29% टैक्स रेवेन्यू में जो इजाफा हुआ वो पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन के हवाले से एक रिकॉर्ड इजाफा है। नेशनल डेवलपमेंट आउटले है उसमें काबिल कदर इजाफा हुआ है, चूँकि सूबों के जो मालियाती वसाइल हैं उसमें बेपनाह इजाफा हुआ है और उसकी वजह से अब सूबे अपने डेवलपमेंट बजट्स को बढ़ा रहे हैं और उसका नतीजा ये है कि इस साल पाकिस्तान का डेवलपमेंट आउटले 4 खरब 224 अरब डॉलर है। एहसन इकबाल ने कहा कि PTI दौरे हुकूमत में माशी हवाले से बारूदी सुरंगें बिछाई गईं। PTI दौर की बारूदी सुरंगों को हम आज भी साफ कर रहे हैं। अगर IMF के प्रोग्राम को कोई बंद कराना चाहता है, एक हिंदुस्तान है या फिर PTI है। अगर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को कोई तनकीद करना चाहता है, एक हिंदुस्तान है और एक PTI है। अगर हमारे मुल्क के अंदर तखरीब कारी कोई करना चाहता है, हमले करना चाहता है, तो एक हिंदुस्तान है और एक PTI। आप किस रास्ते पे चल रहे हैं? वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि भारत पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता और ना ही हम इसकी इजाजत देंगे। अगर ऐसी कोई हरकत हुई तो भारत को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। फहद जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कौमी असम्बली में आइंदा माली साल के बजट पर बहस का आगाज कल से होगा। ऐवान का इजलास दिन 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा और सिंध असम्बली के इजलास की बात करें जो कल दोपहर 3 बजे होगा। सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह माली साल 2025-26 का बजट पेश करेंगे। इससे पहले सिंध काबीना का वजीर आला सिंध के ज़ेर सदारत इजलास होगा जिसमें बजट सिफारिशात की मंजूरी दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आइंदा माली साल का बजट कल दोपहर 3 बजे पेश करेगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बजट वज़ीर कानून आफ्ताब आलम पेश करेंगे। महकमा खजाना का कहना है कि बजट में अवामी फलाह बहबूद, तरक्याती मनसूबों और बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी को तरजीह दी जाएगी। वफाकी बजट में ज़राअत की तरक्की और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए खुसूसी इक़दाम तजवीज़ किए गए हैं। छोटे काश्तकारों और IT माहिरीन ने बजट तजावीज़ पर इत्मीनान का इजहार किया है। तफसील जानते हैं ख्वाजा मोहम्मद कलीम से। पाकिस्तान की GDP का 23% ज़राअत से हासिल होता है। गुज़श्ता बरस ज़रई पैदावार में होने वाली कमी पर काबू पाने और ज़रई पैदावार में इजाफे के लिए वफाकी हुकूमत ने छोटे काश्तकारों को बिला जमानत कर्ज फराहम करने का ऐलान किया है। बिला जमानत कर्ज की मालियत 1 लाख रुपए है। हुकूमत ने ऐलान किए 1 लाख रुपया फी छोटे काश्तकार को देने जद 2-3 एकड़ 4 एकड़ हुकूमत का बहुत बहुत मेहरबानी है। चलो खाद बीज गिन के काश्तकार जड़ा को बिजाई कर सकते। इससे किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। ये जो बीज खाद जो है ये ख़रीद सकेंगे ताकि ये फसल उगा सकें। इस पर हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए वफाकी बजट में 16 अरब 22 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मुजव्वज़ा मनसूबों में IT सेक्टर की रिवैम्पिंग, कराची में IT पार्क क़याम
اور ڈیجیٹل اکانومی کے منصوبے شامل ہیں۔ جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ای کامرس اور سائبر سیکورٹی اور اے آئی سے ریلیونٹ جو جتنے بھی ایریاز تھے انہیں فوکس کیا گیا ہے، کیونکہ یہ پاکستان کا بنیادی طور پر فیوچر ہے، اور بلکہ اس فیوچر کی بنیاد پر ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کل کو پاکستان نے پوری دنیا میں سسٹینیبل ماڈل کی طرف جانا ہے۔ زرعی پیداوار میں اضافے اور ڈیجیٹل اکانومی کے فروغ سے قیمتی زر مبادلہ کا حصول بھی ممکن بنایا جا سکے گا۔ خواجہ کلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ مالی سال 2025-26 کے لیے پیش کی جانے والی بجٹ تجاویز کوشائند ہیں اور امید ہے کہ آئندہ مالی سال کے اختتام تک ہم مزید معاشی کامیابیاں سمیٹیں گے۔ کراچی کی بزنس کمیونٹی کا کیا کہنا ہے، یہ بتائیں گے سید جہانگیر علی۔ مالی سال 2025-26 کی بجٹ تجاویز پر اظہار خیال کرتے ہوئے تاجر برادری کا کہنا ہے کہ پہلی دفعہ موجودہ حکومت نے معاشی میدان میں انقلابی ترجیحات طے کی، جبکہ فسکل ریفارمز، ٹیکسیشن ریفارمز کے باعث نہ صرف ملک میں فائلر کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا بلکہ حکومت کو بھی اس مد میں کامیابی ملی ہے۔ اس بجٹ میں حکومت نے 20% بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کیا، اور اس کے علاوہ سیلریڈ کلاس کو جتنا بھی گورنمنٹ ایک ایڈجسٹ کر سکتی تھی ٹیکس کے حوالے سے، اور پلس سیلری انکریز کرنے کے حوالے سے، پینشنر کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی ہے۔ جو ابھی گورنمنٹ نے اس میں ریلیف دیا، جو اس میں پراپرٹی وغیرہ میں اس سے تقریباً 40 انڈسٹریز جو ہیں وہ چلیں گی، تو اس سے لوگوں کو روزگار ملے گا۔ تاجر اور سرمایہ کاروں کا کہنا ہے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں کمی کے ذریعے ہی غیر ملکی سرمایہ کاری اور سرمایہ کاروں کی حوصلہ افزائی کی جا سکتی ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس ریلیف کو بھی سراہا جا رہا ہے، جبکہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ بھی بجٹ پر پورا اعتماد کا اظہار کر رئی ہے۔ فائلرز ہیں وہ تقریباً 100% بڑھ گئے ہیں، 100% پچھلے سال کی نسبت، جس سے لوگ ٹیکس نیٹ میں آنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں جو لوگ ٹیکس نیٹ میں آئے ان پہ کوئیژن نہ ہو، ان پہ کوئی خوف کی فضا نہ ہو۔ انویسٹمنٹ کلائمیٹ ملک میں کریٹ، اسپیشلی جنگ کے بعد لوگ بہت موٹیویٹڈ ہیں، نوجوان طبقہ بڑا خوش ہے، اور وہ ہر پاکستانی خوش ہے، وہ چاہتا ہے کہ ملک میں کنٹریبیوٹ کرے۔ آئی ٹی کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے کہ ایک بہت اچھا انہوں نے اقدام کیا ہے کہ اس کو 3.4 بلین سے 25 بلین کے اوپر لے کر گئے ہیں، اور یہ بہت اچھا اقدام ہے، اور آئی ٹی میں بہت گنجائش ہے۔ تاجر برادری کا کہنا ہے کہ معاشی میدان میں فیصلوں کے ثمرات ملک کی معاشی ترقی کی صورت میں بدستور سامنے آ رہے ہیں۔ سید جہانگیر علی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ ایس آئی ایف سی کی معاونت سے پاکستان کے معدنی وسائل کے شعبے میں اہم پیش رفت۔ انفال گروپ کے تحت منرلز کمپلیکس کے قیام سے نہ صرف قیمتی معدنیات کی تلاش ممکن ہو سکے گی بلکہ سالانہ اربوں ڈالرز کی بچت اور برآمدات میں اضافہ بھی متوقع ہے۔ تفصیل جانتے ہیں سدرا فاطمہ سے۔ پاکستان کے معدنیات کے شعبے میں بڑی سرمایہ کاری کا آغاز ہو گیا ہے۔ ایس آئی ایف سی کے تعاون سے انفال گروپ کے تحت منرلز کمپلیکس کا قیام عمل میں آ گیا۔ حکومت پنجاب اور ایس آئی ایف سی کی ہم آہنگی کے ذریعے انفال گروپ کو ابتدائی طور پر $150 ملین کی سرمایہ کاری سے ورک آرڈر جاری کر دیا گیا ہے۔ اس منصوبے سے نہ صرف راک سالٹ بلکہ دیگر قیمتی کیمیکلز کی ایکسپلوریشن اور پروسیسنگ کی راہیں ہموار ہوں گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس منصوبے کے تحت پاکستان کی کیمیکل امپورٹس میں سالانہ $2.9 بلین کی بچت ممکن ہو سکے گی، جبکہ قیمتی معدنیات کی ایکسپورٹ سے زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی اضافہ ہوگا۔ منرلز کمپلیکس کی بدولت پاکستان کے کیمیکل اور معدنی شعبے کی صلاحیت میں زبردست اضافہ بھی متوقع ہے، جو کہ طویل المدتی بنیادوں پر ملکی اقتصادی خود انحصاری کی سمت ایک اہم قدم ہے۔ انفال گروپ کے منرلز کمپلیکس کا قیام نہ صرف ملکی سرمایہ کاری کا ایک مثبت اشاریہ ہے بلکہ یہ ایس آئی ایف سی کے مؤثر کردار کا بھی عکاس ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ یہ منصوبہ نہ صرف پاکستان کے صنعتی مستقبل کو نئی بلندیوں پر لے جائے گا بلکہ غیر ملکی سرمایہ کاری، صنعتی ترقی اور روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا کرے گا۔ سدرا فاطمہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج ملا جلا رجحان دیکھنے میں آیا۔ دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس میں 2300 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد مارکیٹ پہلے 1,25,000 اور پھر 1,26,000 کی حد عبور کرتے ہوئے تاریخ کی بلند ترین سطح 1,26,718 پر بھی پہنچی۔ تاہم بعد میں مارکیٹ 259 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 1,24,093 پر بند ہوئی۔ بھارتی ریاست گجرات میں احمد آباد ایئرپورٹ کے قریب ایئر انڈیا کا مسافر طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ حادثے میں طیارے میں سوار عملے کے 12 ارکان سمیت 241 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ ایک مسافر معجزانہ طور پر بچ گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے طیارہ حادثے میں قیمتی جانوں کی ضیاع پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ اس بارے میں تفصیل جانتے ہیں یاسر حسین سے۔
بھارتی میڈیا کے مطابق ایئر انڈیا کی فلائٹ نمبر AI-171 بھارتی ریاست گجرات کے احمد آباد ایئرپورٹ سے لندن کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ حادثہ ٹیک آف کے دوران پیش آیا۔ طیارے میں 230 مسافر، 2 پائلٹ اور عملے کے 10 ارکان سمیت کل 242 افراد سوار تھے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حادثے کے شکار طیارے میں سابق وزیر اعلیٰ گجرات وجے روپانی، 169 بھارتی شہری، 53 برطانوی، 1 کینیڈین اور 7 پرتگالی شہریوں سمیت 11 بچے بھی موجود تھے۔ احمد آباد پولیس کے مطابق طیارہ رہائشی علاقے میں گر کر تباہ ہوا، جس کے باعث 25 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ حادثہ بھارتی وقت کے مطابق 1 سے 2 بجے کے درمیان پیش آیا اور حادثے کے بعد احمد آباد ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن بند کر دیا گیا ہے، جبکہ ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ فلائٹ ریڈار کے مطابق ٹیک آف کے بعد 1 منٹ سے بھی کم وقت میں 625 فٹ کی بلندی پر طیارے سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ بھارتی ڈی جی سول ایویشن کے مطابق طیارہ گرنے سے قبل 1:39 پر کیپٹن نے مے ڈے کی کال دی۔ حادثے کا شکار بوئنگ 787 طیارہ 11 سال پرانا تھا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے طیارہ حادثے میں قیمتی جانوں کے زیاں پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھی طیارہ حادثے پر افسوس اور متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ مودی سرکار کے جنگی جنون اور خطے میں کشیدگی کو ہوا دینے کی پالیسیوں کے باعث بھارت کو عالمی سطح پر نہ صرف سفارتی تنہائی کا سامنا ہے بلکہ اب معیشت بھی سست روی کا شکار ہے۔ عالمی بینک نے بھارت کی شرح نمو کم کر دی ہے، تفصیل بتائیں گے سید جہانگیر علی۔ جنگی محاذ پر مودی سرکار کی اشتعال انگیزی اور داخلی سطح پر اقلیتوں کے خلاف سخت پالیسیوں کا اثر اب بھارتی معیشت پر بھی دکھائی دینے لگا ہے۔ معروف بھارتی اخبار دی ہندو کے مطابق عالمی بینک نے مالی سال 2025-26 کے لیے بھارت کی اقتصادی شرح نمو 6.7% سے کم کر کے 6.3% کر دی ہے۔ یہ رپورٹ 10 جون کو واشنگٹن میں جاری ہونے والی عالمی اقتصادی امکانات کی تازہ دستاویز میں شائع کی گئی۔ دی ہندو کی رپورٹ کے مطابق بھارت کی برآمدات میں واضح کمی دیکھی گئی ہے اور اہم تجارتی شراکت دار اب نئی سرمایہ کاری سے گریز کر رہے ہیں۔ عالمی سطح پر بڑھتی تجارتی رکاوٹیں اور مودی حکومت کے فالس فلیگ آپریشنز نے بھارت کو غیر مستحکم سرمایہ کاری ماحول میں تبدیل کر دیا ہے۔ عالمی کمپنیوں بالخصوص امریکی اداروں نے بھارت میں آئی فونز اور دیگر ٹیکنالوجی مصنوعات کی فیکٹریاں لگانے کے فیصلے مؤخر کر دیے ہیں، جسے مودی حکومت کے جارحانہ عزائم سے جوڑا جا رہا ہے۔ جنگی جنون، سفارتی ناکامی اور اب معیشت کی سست روی مودی حکومت کے لیے مشکلات کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ سید جہانگیر علی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل نے کہا ہے کہ پاک افواج نے مارکہ حق میں دشمن کو وہ سبق سکھایا کہ اس کی آئندہ نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ اس شاندار فتح سے پاکستان کا امیج دنیا بھر میں ابھرا۔ اس آپریشن سے تو ہماری کیپیبلٹی جو ہم نے شو کی ہے 3 دن میں، واقعی یہ بڑی سپرب تھی۔ پوری دنیا بھی اس وقت پاکستان کی طرف متوجہ ہے، ویسٹ بھی ہے، چائنا بھی ہے اور دوسرے پاورز بھی ہیں کہ بھائی پاکستان واقعی ادھر ایک وجود ہے، ایک طاقت ہے اس خطے میں جس کا کوئی اہمیت ہے۔ تو ناؤ اس نظر سے ہم کو تھوڑا یہ دیکھتے ہیں۔ عالمی سطح پر بھارت کی اسٹریٹجک ناکامی، سابق قومی سلامتی مشیر کہتے ہیں کہ مودی سرکار عالمی بیانیہ بنانے میں ناکام رہی۔ تفصیل بتائیں گی وردہ سلیم۔ حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران مودی کی ناقص حکمت عملی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بھارتی قومی سلامتی کے سابق مشیر شیو شنکر نے پہلگام واقعے اور آپریشن سندور کے حوالے سے سخت سوالات اٹھا دیے۔ کرن تھاپر کے انٹرویو میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا پاک بھارت کشیدگی کے دوران بھارت عالمی بیانیہ قائم کرنے میں ناکام رہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان نے فوری طور پر واضح ثبوت اور شواہد کے ساتھ بین الاقوامی میڈیا کے سامنے اپنی پوزیشن مضبوط کر لی ہے۔ شیو شنکر نے کہا کہ مودی کی سست اور کمزور سفارتی حکمت عملی نے عالمی سطح پر بھارت کی ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے اور بھارتی میڈیا کے جذباتی اور سنسنی خیز کوریج نے عالمی برادری میں بھارت کی سنجیدگی پر سوال اٹھائے ہیں۔ You know, there will be losses in conflict, but we have to see how we respond to them, how we learn from them. I think that's a lesson that the public needs to learn, and certainly the Indian media needs to learn, because I don't think the Indian television media at least did us any favors
during this conflict. I was sitting outside and they actually made India look quite ridiculous. शिव शंकर ने कहा कि पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिकमत अमली खुसूसन दिफाई थी। चीन और पाकिस्तान की बढ़ती हुई फौजी कुर्बत भारत के लिए एक मुस्तकिल चैलेंज उभर कर सामने आई है। उन्होंने कहा कि भारत पाक चीन इत्तेहाद को संजीदगी से नहीं ले रहा और मोदी की जानिब से मौसर मनसूबाबंदी का फुकदान नजर आता है। वरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। भारतीय फ़ज़ाइया की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए बड़ी रकम खर्च करने का मंसूबा। दूसरी जानिब भारत के जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल के तजर्बे की भी तैयारी। भारतीय जंगी तैयारियों के जवाब में पाकिस्तान भी दुश्मन को सरप्राइज देने के लिए तैयार है। तफसील जानते हैं वसीम सजाद से। पाकिस्तान से इबरतनाक शिकस्त के बाद मोदी सरकार हवास बाख्ता हो गई है और इसके जंगी जुनून में इजाफा हो गया है। मोदी अब भी खित्ते में इजारादारी के ख्वाबों में मगन है और भारतीय फिजाइया की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी रकम खर्च करने का मंसूबा मंजर आम पर आ गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत 10,000 करोड़ रुपयों से आई स्टार प्रोजेक्ट के 3 जहाज खरीदेगा। बिजनेस टुडे के मुताबिक ये तैयारे मकामी सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से लेस होंगे और ये तैयारे दुश्मन की फिजाई हदूद में दाखिल हुए बगैर दुश्मन की पोजीशनों का पता लगाने, ट्रैक करने और इनको निशाना बनाने के काबिल होंगे। दूसरी तरफ भारत के जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल के तजर्बे की तैयारी भी जारी है। पाकिस्तान के खिलाफ मुमकिन जारियत की नीयत से भारत तेजी से हमला आवर निजाम तैयार कर रहा है। जी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक ये मंसूबा DRDO के खुफिया प्रोग्राम प्रोजेक्ट विष्णु के तहत तैयार हुआ है। इस मिसाइल को एशिया में ताकत के तवाजुन को बदलने वाला गेम चेंजर करार दिया जा रहा है। इस मिसाइल की रफ्तार आवाज की रफ्तार से 8 गुना ज्यादा है। 1500 किलोमीटर रेंज वाला ये मिसाइल 1 सेकंड में 3 किलोमीटर का फासला तय करने की सलाहियत रखता है, जो जमीन, फजा और समंदर तीनों जगहों से लॉन्च किया जा सकता है। भारत का ये हाइपरसोनिक मिसाइल तजर्बा खित्ते में ताकत के तवाजुन को मजीद बिगाड़ कर असले की नई दौर को जन्म देगा। भारत हमेशा से पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए हथियारों और टेक्नोलॉजी के हसूल में मशगूल रहा, मगर मैदान जंग में इसे हमेशा मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान की जोहरी और दिफाई हिकमत अमली सिर्फ दिफाई नौयत की है और पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती के मफादात का हर सूरत में दिफा करेगा, लेकिन कभी भी जारियत की इब्तिदा नहीं करेगा। वसीम सज्जाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। अमेरिका के साथ भारत की दोगली पॉलिसी और बदलते पैंतरे, गोदी मीडिया की अमेरिका पर तनकीद जारी है। मारूफ भारतीय दिफाई सहाफ़ी और एंकर शिव अरोड़ ने भी अमेरिका को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। रिपोर्ट करेंगे किंजा नकवी। भारत की खारजा पॉलिसी अब बयानात, जज्बात और ट्वीट्स के रहमो करम पर है। कल तक पाकिस्तान को सिफारती तन्हाई में धकेलने और अमेरिका को स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहने वाला भारत आज अमेरिका पर ही तनकीद में मसरूफ है। भारत का रोना यह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को दावत दी, मगर दुनिया भारत के बयानिए पे यकीन नहीं कर रही। मोदी की नाकाम खारजा पॉलिसी खुद इसके मीडिया को भी हजम नहीं हो रही। दिफाई तज्जियाकार और एंकर शिव अरोड़ ने आर्मी चीफ को मद्दू करने पर अमेरिका को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि पाकिस्तान के हाथ 26 भारतीयों के कत्ल के हफ्तों बाद अब ट्रंप पाक फौज के सरबराह की मेजबानी करने वाले हैं। Just days after India wrapped up a historic anti-terror campaign, we can all agree it was. We thought the United States was a trusted all-weather ally in this fight. But over the last 1 month, and especially in the last few days, Washington under Donald Trump has shown itself to be shockingly fickle. Even as a Pakistan-backed terrorist murdered 26 Indian tourists in Pahalgam, the US has not only stayed silent, it has gone ahead and pampered Pakistan. भारत की शिकायत और अमेरिका के साथ ताल्लुकात में तनाव इसकी आलमी सिफारती पोजीशन को मजीद कमजोर कर रहे हैं। भारतीय मीडिया की जानिब से की जाने वाली तनकीद भारत की खारजा पॉलिसी की नाकामी का गम्माज है। He has no idea about what's happening here. Till a few days back, he said that this is not for him to look into, and now he's congratulating both countries, trying to be a global peacemaker. Trump announced it before either country did, and since then he's been claiming credit. He's talked about it almost every day, at every public engagement he's had, exaggerating the prospect of a nuclear war and insisting that he is the one who stopped it. जहां गोदी मीडिया बहुत सी सिफारती नाकामियों के बावजूद हर वक्त मोदी की सताइश में मसरूफ रहता है, वहीं भारतीय अदाकार प्रकाश राज ने मोदी को आईना दिखाते हुए सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। He is a useless, shameless, heartless, visionless man we have as the Prime Minister of this country.
Useless is. Probably if Manipur was in some other country, he would have visited. Because it is in my country, he doesn't want to visit. We have a fellow without vision. दुनिया भारत की शिकायतें सुन सुन कर थक चुकी है। अब भारत के सहाफी भी इस शोर में शामिल हो गए हैं। 26 लाशों के बाद भी भारत आलमी हिमायत हासिल न कर सका। ये उसकी सिफारती तन्हाई की सबसे बड़ी अलामत है। अगर अमेरिका पाकिस्तान को खुशामदीद कहता है तो इस पर शोर मचाने के बजाय भारत को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। किंजा नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। कुछ दीगर अहम खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। ये सुई सिर्फ कपड़ा नहीं, नौजवानों के ख्वाब भी बुनती है। अब वक्त है इन ख्वाबों को हकीकत में बदलने का। नेफ्टेक प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और SIFC की मुशावरत से वजीर आजम का स्पेशल इनिशिएटिव पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्ट एसोसिएशन के इश्तराक से नेफ्टेक कर रहा है इंडस्ट्री के माहिर असातिज़ा की ज़ेर निगरानी कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर हाई डिमांड स्किल्स, ड्रेस मेकिंग, मर्चेंडाइजिंग मैनेजमेंट टेक्निक्स, कंप्यूटराइज्ड इंडस्ट्रियल एम्ब्रॉयडरी एंड डिजाइनिंग, कैड कंप्यूटराइज्ड पैटर्न मेकिंग, फैशन डिजाइनिंग, गारमेंट्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर डॉक्यूमेंटेशन और टेक्सटाइल प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल जैसे शोबों में 3 माह के मुफ्त कोर्सेज का आगाज। दाखिले की आखिरी तारीख 20 जून 2025। एहलियत की शराइत और मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। नाज़रीन, रियासत पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ एक जामे हिकमत अमली के जरिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करते हुए दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़्म किया, जिसके नतीजे में मुल्क भर में अमन की फजा बहाल हुई। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद फैसल राव। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया की तवील तरीन जंग लड़ी है। ऐसे बेशुमार दिन हमारी तारीख का हिस्सा हैं जब मासूम जाने दहशतगर्दी की नजर हुई। स्कूल, मसाजिद, बाजार और सिक्योरिटी फोर्सेस के मराकज पर दहशतगर्दों ने हमले किए। APS पिशावर पर दहशतगर्दों के हमले के बाद मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान तश्कील दिया गया, जिसमें वक्त के साथ साथ तब्दीलियां की जाती रहीं, जिनमें इंतहा पसंदी के खिलाफ इकदामात, दहशतगर्दों की माली मामनत का खात्मा, मदारस की रजिस्ट्रेशन और इस्लाहात, साइबर सिक्योरिटी और इंतहा पसंदी का मुकाबला, दहशतगर्दों के मुकदमात के लिए खसूसी अदालतों का क़याम, सरहदी निगरानी और फाटा की मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा में शमूलियत और दहशतगर्दी से मुतासरीन की बहाली जैसे इकदामात शामिल थे। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए बहुत से चैलेंजेस का सामना था, जिनमें इदारों के दरमियान राब्ते की कमी, सूबों के दरमियान ताउन का फुकदान और बाद मजहबी और सियासी अनासर की तरफ से मुज़ाहमत का सामना था। वफाकी वजीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी की सदारत में इजलास में इस बात का अज़्म किया गया कि मुल्क को दरपेश दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी जैसे चैलेंजेस से सख्ती से निपटा जाएगा। वजारत दाखिला के तमाम दैली इदारों ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद में भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। नेशनल एक्शन प्लान इस कौमी अज़म का मज़हर है जिसका मकसद दहशतगर्दी के नासूर का जड़ से खात्मा करना है। मोहम्मद फैसल राव, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदा मामलात के बाद खित्ते में हाई अलर्ट है। इराक में अमरीकी सफारत खाने को सिक्योरिटी खदशात के बायस जुज़वी तौर पर खाली करवाने का फैसला किया गया है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक बगदाद में अमरीकी सफारत खाने के गैर ज़रूरी अमले और उनके अहल खाना का इनखला जल्द शुरू किया जाएगा। बहरीन और कुवैत में तैनात अमरीकी फौजियों के अहल खाना को भी वापस बुला लिया गया है। अमरीका ने कुवैत, कतर, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात में भी अड्डों की सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया है। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है और इसराइल ने ईरान पर हमले की पेश की इत्तला अमरीका को भी कर दी है। दहशतगर्द इसराइली फोर्सेज की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर सेहूनी फोर्सेज के फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों में 103 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 427 ज़ख्मी हो गए। सेहूनी फौज ने गजा भर में ड्रोन, हेलीकॉप्टर और टैंकों से बराह रास्त हमले किए। अरब मीडिया के मुताबिक सेहूनी फौज ने इमदाद के मुतलाशी फ़लस्तीनियों पर हमले किए, जिसमें 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। शहदा की मजमूई तादाद 55,104 हो गई जबकि 1,27,000 फ़लस्तीनी ज़ख्मी भी हुए।
और दिल्ली हाई कोर्ट ने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा शबीर अहमद शाह की एक झूठे मुकदमे में दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी है। KMS के मुताबिक हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने ट्रायल कोर्ट के 7 जुलाई 2023 के फैसले को बरकरार रखते हुए दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। शबीर अहमद शाह के खिलाफ ये झूठा मुकदमा बदनाम ज़माना भारतीय तहकीकाती इदारे NIA ने 2017 में दर्ज किया था। शबीर अहमद शाह नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। काबिज इंतजामिया ने बानिहाल और हिंदवाड़ा के इलाकों में 3 कश्मीरियों के बागात की अराजी और कई दुकानें जब्त कर ली हैं, जिसका मकसद कश्मीरियों को उनके ही वतन में अजनबी बनाने और जब्त शुदा जायदादें गैर कश्मीरियों को देकर इलाके में आबादी का तनासुब तब्दील करना है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में कहा कि भारत फौजी जारहियत और जाबराना कवानीन के जरिए हक़ खुद इरादियत के हुसूल के लिए कश्मीरियों की मुनसिफाना जदोजहद को हरगिज़ दबा नहीं सकता। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों ने गैर कानूनी भारतीय कब्जे को कभी तस्लीम नहीं किया और वह आज़ादी के मुतालबे से कभी दस्तबरदार नहीं होंगे। इस्लामी नजरियाती कौंसिल की जानिब से साबिक नाज़िम आला जामिया नईमिया अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद सरफराज नईमी शहीद की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करने के लिए इस्लामाबाद में दुआया तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद राग़िब नईमी ने कहा कि सरफराज नईमी शहीद का पाकिस्तान की बका और खवारिज के खात्मे के लिए दिया गया फतवा इंतहाई अहम है। इसी फतवे की बुनियाद पर पाकिस्तान में खुदकुश हमलों को हराम करार दिया गया। इसी तरह खवारिज की तरफ से पाकिस्तानी अफवाज, इंतजामिया और अवामुन्नास का बहिमाना कत्ल खिलाफ शरीयत करार दिया गया। डॉक्टर आसमा रब्बानी ने फिलिपाइन में पाकिस्तान के सफीर की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। डॉक्टर आसमा रब्बानी ने फिलिपाइन के सदर आली जनाब फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर को जमहूरिया इस्लामिया पाकिस्तान के सफीर की हैसियत से अपनी असनाद सफारत पेश की। असनाद पेश करने के बाद सदर फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर से मुलाकात में सफ़ीर ने दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया, जिनमें तिजारत, सरमायाकारी और बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर ताउन जैसे शोबे शामिल हैं। इस मौके पर पाकिस्तानी सफ़ीर को खुसूसी गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाजरीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठोहार, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने के अलावा आंधी, गर्द आलूद हवाएं चलने और गरज चमक के साथ चंद मुकामात पर बारिश का इम्कान है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात की जाए तो जैकबाबाद में 50, दादू, नूरपुर थल, सिब्बी 49, बखर, बहावलनगर, सरगोदा, जौहराबाद, गुजरांवाला और हाफिजाबाद में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, खेल में खुशामदीद। आपको बताएं कि ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग जारी है। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। लॉर्ड्स में खेले जा रहे मैच का दूसरा रोज भी बॉलर्स के नाम रहा। जनूबी अफ्रीका की टीम पहली इनिंग्स में 138 रन बनाकर ऑल आउट हुई। प्रोटीज ने कल के स्कोर 43 रन 4 खिलाड़ी आउट से बैटिंग दोबारा शुरू की तो 94 के मजमूई स्कोर पर कप्तान तिम्बा बावुमा 36 रन बनाकर आउट हुए। विकेट कीपर बैटर कार्ल वेरेन 13 रन बना सके। मार्को जेनसन 0 पर चलते बने। डेविड बेडिंगम 45 रन के साथ टॉप स्कोरर बल्लेबाज रहे। केशव महाराज 7 और कागिसो रबाडा 1 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कप्तान पैट कमिंस ने 6 खिलाड़ियों को चलता किया। मिचेल स्टार्क ने 2 और जॉश हेजलवुड ने 1-1 खिलाड़ी को आउट किया। खेल के पहले रोज ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली इनिंग्स में 212 रन बनाकर आउट हुई थी। On-field umpire's decision not out. Cummins overturns it, reviews it. There was चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मसूद अहमद ने कहा है कि पाकिस्तान के नौजवान बहुत बासलाहियत हैं। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत नौजवानों को मसावी मौके फराहम किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए राना मसूद अहमद का कहना था कि वज़ीर आज़म का फोकस पाकिस्तान के नौजवान है।
टैलेंट हंट प्रोग्राम के जरिए नौजवानों की जिंदगियां बना रहे हैं। यूथ प्रोग्राम के तहत कोयटा से टैलेंट हंट का आगाज करने जा रहे हैं। नौजवानों के पास मौके उनकी दहलीज पर चल कर ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि PSL की ट्रॉफी बरतानिया और अमेरिका जाएगी। ट्रॉफी ये पैगाम देगी कि हम अनपसंद लोग हैं और खेलों से मोहब्बत करते हैं। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना ने कहा कि टैलेंट हंट प्रोग्राम के जरिए हर बच्चे को मेरिट पर अपनी सलाहियतें दिखाने का भरपूर मौका मिलेगा। कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि हर गली मोहल्ले से टैलेंट तलाश किया जाएगा। इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और लाहौर कलंदर्स के दरमियान ताउन के मुआहदे पर दस्तखत भी हुए। और अब बात कर लेते हैं टेनिस की। तो क्वींस क्लब टेनिस चैंपियनशिप का क्वार्टर फाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गया। अमेरिका की एमा नोवारो और एमांडा एनिसोवा ने लास्ट 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया। लंदन में खेले जा रहे टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में एमा नोवारो ने ब्राजील की बेट्रिस हदाद माया को 3 सेट्स में हरा दिया। नोवारो ने हदाद माया के खिलाफ 1-6, 7-6 और 6-3 से कामयाबी समेटी। अमेरिका ही की अमांडा एनिसोमोवा ने बरतानिया की सने कार्टल को सिर्फ 64 मिनट के मुकाबले में स्ट्रेट सेट्स में हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। एनिसोमोवा ने कार्टल को 6-1 और 6-3 से ज़ेर किया। दूसरी जानिब अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज और बेन शेल्टन स्टटगार्ट ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। जमहूरिया चेक के येजी लहेट्स्का और हंगरी के मार्टिन फोचोविच ने भी लास्ट 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया। जर्मनी में खेले जा रहे टूर्नामेंट के राउंड ऑफ 16 में टेलर फ्रिट्ज ने फ्रांस के क्विंटन हालिस को स्ट्रेट सेट्स में मात दी। फ्रिट्ज ने हालिस को 6-3 और 7-6 से ज़ेर किया। अमेरिका के बेन शेल्टन ने फ्रांस के पियर ह्यूज हर्बर्ट को सिर्फ 50 मिनट के मैच में मात देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। शेल्टन ने फ्रांसीसी हरीफ के खिलाफ 7-6 और 6-3 से कामयाबी समेटी। जमहूरिया चेक के येजी लहेट्स्का ने जर्मनी के यॉन लेनॉर्डस्ट्रुफ को 6-4 और 7-5 से ज़ेर किया। हंगरी के मार्टिन फोचोविच ने फ्रांस के ऑर्थर रेंडनिश को 7-6 और 6-3 से मात देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। नाजरीन, रूस के कैरन खैचनोव और कनाडा के गैब्रियल डियालो हर्जोगन बॉश टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। नेदरलैंड्स में जारी ATP 250 टूर्नामेंट के राउंड ऑफ 16 में कैरन खैचनोव ने अमेरिका के मैकेंजी मैकडोनल्ड को 3 सेट्स में हरा दिया। खैचनोव ने मैकडोनल्ड को 6-3, 5-7 और 7-6 से ज़ेर किया। कनाडा के गैब्रियल डियालो ने ऑस्ट्रेलिया के जॉर्डन थॉम्सन को 4-6, 6-1 और 7-5 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल का टिकट हासिल कर लिया। इसके साथ ही बुलेटिन का वक्त खत्म हुआ। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त, बार वक्त, हर वक्त।